Hello everyone, myself Mrs. Moshmi, Principal of St. Xavier's High School, Hardoi speaking. We have already informed in our previous video that CBSE is going to introduce on-screen marking for the evaluation of class 12 board examination copies. So in my previous video, what are the good sides of this OSM, what are the benefits we will be getting from OSM, that everything I have explained there. In this video, today what we are going to explain how an evaluator will check the copies digitally. Many important things we have introduced in our video. Few are here, what I am explaining right now only. Main dashboard of portal. Under that, main assessment, profile as well as subject-wise report we have explained there. Next I am coming under answer sheet evaluation dashboard. What are the things we have mentioned there specifically? The left panel where the answer script's ID will be shown. Next I am coming main answer sheet panel where the scanned answer sheet will be shown. Next, the different sort of tools will be shown like the marking tool, blank page, tick, then the rough work, these sort of different sort of tools will be marked over there. Next I am coming UFM. You all know that under the unfair means what are the things are coming. When you will be clicking there, it will show on your screen that what are the things, if these things will be mentioned in the copies, then the copy can be considered under UFM. Like if the child is writing something which is disclosing his own identity or any sort of songs or any abusive words, in that case evaluator is having the authority to mark that copy under UFM, right? And next thing, as you all know that we are going to check the copies digitally, so all the copies will be scanned, then only it will be shown on the screen. So while scanning done, it may happen that some of the copy you have got, some of the copies, I won't say some of the page, any particular page where impressions are not that much proper, the blur it is. So immediately what you can do, you can go to the reject option. So the moment you will go to the reject option, it will show to the CBSE. It will knock over there. So immediately they will be asking for the proper scanning and again it will be shown in your system only. So these are all the things you can get from here. Other than these also, many features are there what we have already introduced over here. One thing I need to say here, like see, this is the first time board is introducing OSM. So till now it is under trial and error. But the video what we have made it on our practical experience. So when an evaluator will be sitting for checking what are the areas he needs to take care of and how a copy will be checked thoroughly till the end. To avoid the bot automation, CAPTCHA code, which is very important, that has been introduced by the CBSE only. So now I'll request you to go through the full video thoroughly, especially the evaluators, so that you will not be facing any sort of problem while you will be checking the copies, because we have taken care of each and every areas. Next thing, those who are not the evaluator, I will request you all to see it for your knowledge only, and it will be a very interesting one, so just watch it. Hi, this is Fuzail Ansari, IT cell of St. Xavier's High School, Hardoi. And today I'm going to tell you the whole process of on-screen marking. And obviously we will start from this page only, and step by step I'll let you know all the things. So this is the login page as you can see on your screen, and इसमें आपको अपनी user ID enter करनी है given by CBSE, and I hope कि आप सभी लोगों ने अपनी जो user ID and password है वो receive कर लिए होंगे. So I have given my user ID as well as password, and then school number. The school number you can ask with your school only. So here you have to choose your date of birth, whatever it is, and then
यू हैव टू एंटर दिस कैप्चा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन द ड्राई रन एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू लॉग इन एंड ऑल, प्लीज़ चेक वंस मोर बिकॉज बिफोर 3 or 4 days अपडेटेड दिस लॉगिन पेज ऑल्सो। पहले यहाँ पर कैप्चा कोड नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे कैप्चा कोड भी आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशंस को दूर करने के लिए दिया गया है कैप्चा कोड। ऑटोमेशंस मतलब इस पूरी प्रोसेस को बॉट के थ्रू भी करवा सकते हैं। बॉट मतलब एक प्रोग्राम होगा जो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे क्वेश्चन चेक करता हुआ चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द बॉट। तो उस बॉट सिस्टम को अवॉइड करने के लिए सीबीएसई ने अब कैप्चा कोड को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। आफ्टर एंटरिंग द कैप्चा कोड यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड ओटीपी एंड व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन सेंड ओटीपी इट विल कम ऑन योर registered mobile number and email ID whatever you have shared with school at the time of OSIS, and here I have to enter the OTP whatever I have received on my email address as well as on your registered mobile number। मैं आपको OTP से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर OTP देर से आता है या आता ही नहीं है। उस केस में हमको अपने ईमेल एड्रेस पे OTP चेक करना होगा। ईमेल में भी आप एक ये चीज़ समझ लें कि आपके इनबॉक्स में OSM का OTP नहीं आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर टैप करेंगे और हमें चेक करना होगा स्पैम में, क्योंकि अभी तक जो OSM के लॉगिन के समय OTP आ रहा है वो स्पैम में ही जा रहा है। तो अगर आप मोबाइल पे OTP रिसीव नहीं कर पाए हैं और ईमेल से देखना चाहते हैं तो आप ईमेल में स्पैम में जाके चेक करेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट गोना एंटर माय OTP and click on login. Whenever you will click on login, this alert box will come on your screen and click on OK. So this is our dashboard. जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारा सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अपनी लॉगिन आईडी एंड यहाँ पर अपना नाम चेक करना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इवैल्यूएशन परफॉर्म करोगे तो वहाँ पर जो सिस्टम आपको डेडिकेटेड सिस्टम मिलेगा एज एन इवैल्यूएटर, हो सकता है आपको सिस्टम नंबर 4 आज मिला है और आपने उस पर अपनी इवैल्यूएशन की, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट डे आपको सिस्टम 4 की जगह पे 5 मिल जाए ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। अब क्या है, आपने अपने पीसी नंबर 4 से लॉग आउट नहीं किया था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी इवैल्यूएटर आपके सिस्टम नंबर 4 पे बैठेगा कि वो कॉपी इवैल्यूएट करेगा आपकी आईडी पे, और इसी तरह से आप जो सिस्टम नंबर 5 पे बैठने जा रहे हो उस पे जिस इवैल्यूएटर ने लॉगिन किया हुआ उसकी आईडी उस पे पड़ी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लॉग आउट नहीं हुआ था, ये केस हो सकता है। तो आप जो कॉपी चेक करोगे वो उसके अकाउंट में ऐड होंगी और वो जो कॉपी चेक करेगा वो आपके अकाउंट में ऐड होंगी, सही गलत जो भी है। तो उससे सबसे अच्छा बचने का तरीका यही है कि आप जैसे ही लॉगिन करें सबसे पहला आपका काम है कि अपनी यूज़र आईडी और नाम ज़रूर चेक कर लें। ओके, सो दिस इज़ आवर डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड में सबसे पहले आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखी है। ठीक है, आपका जो लेना देना है वो यहाँ से शुरू होता है, जो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉपी इवैल्यूएशन करने से पहले ये सारी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लें। देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट उन्होंने मेंशन भी किया है ताकि वो केस आपके सामने ना आए। ये देखिए, लॉग आउट ऑफ द इवैल्यूएशन एप्लीकेशन सिक्योरली व्हेन यू आर नॉट डूइंग द इवैल्यूएशन। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड में होम आ जाएगा, होम पे यही पेज आएगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आ जाते हैं मेन असेसमेंट पे। मेन असेसमेंट में आपकी रिपोर्ट कि अभी तक आपने कितनी कॉपी चेक कर ली है टोटल डे 1 से, और आज के दिन में जो भी करंट डेट होगी उसमें आपने कितनी चेक की हैं। जैसे कि आज के दिन मैंने अभी एक भी कॉपी इवैल्यूएट नहीं की है तो ये 0 बता रहा है, बट डे 1 से आई थिंक 16 फरवरी ये स्टार्ट हो गया था इवैल्यूएशन, तब से लेकर आज तक मैंने 8 कॉपी अभी तक इवैल्यूएट की हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक और सेकंड चीज़ जो आपको चेक करनी है, वो ये कि जब कभी भी आप मेन असेसमेंट पे जाएं और कॉपी इवैल्यूएट करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका सब्जेक्ट कोड सही है, आपकी जो कॉपी है वो आपके सब्जेक्ट की ही आ रही है या कोई दूसरी कॉपी आपके डैशबोर्ड पे शो हो रही है। क्योंकि कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कोई मैथ पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, उन पे या फिजिकल एजुकेशन, उन पे जो कॉपीज़ शो हो रही हैं वो किसी डिफरेंट सब्जेक्ट की शो हो रही हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये एक बार ज़रूर चेक कर लें। और एक और बात है, यहाँ पर लिखा होना ही काफ़ी नहीं है, आप जब स्टार्ट करेंगे तब भी आप एक बार और ज़रूर चेक कर लें कि कॉपी सेम सब्जेक्ट की ही आ रही है या नहीं।
और उसके बाद इवैल्यूएशन स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आंसर बुक इवैल्यूएटेड 8, आंसर बुक रिजेक्टेड, अभी तक आपने अपने डैशबोर्ड से कितनी आंसर बुक को रिजेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने नहीं किया है तो नहीं आ रहा है। UFM अनफेयर मीन्स में हमने अभी तक इवैल्यूएशन करते समय कितनी कॉपी को एज अ UFM कंसीडर किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अभी तक मैंने नहीं किया तो नहीं आ रहा है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट आ गई है। लेकिन कई केसेस में ऐसा है, जैसे अगर मैं कॉमर्स का टीचर हूँ तो मेरे पास BST भी हो सकता है, अकाउंटेंसी भी हो सकता है और इकोनॉमिक्स भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट में हो सकता है आप मोर देन वन सब्जेक्ट के टीचर हो तो आपके पास मोर देन वन सब्जेक्ट की कॉपीज़ यहाँ पे शो होंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इसके बाद हम जाते हैं डे वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इसमें आपकी जितनी भी, अभी मेरे पास कितनी आंसर शीट है, 8 आंसर शीट हैं जिनको मैं इवैल्यूएट कर चुका हूँ। लेकिन किस दिन पे मैंने कौन सी और कितनी कॉपी इवैल्यूएट की है, अगर ये आपको डिटेल्स चाहिए तो आप डे वाइज इवैल्यूएशन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आ गया, सब्जेक्ट नेम आ गया, उसके बाद इवैल्यूएशन डेट आ गई, कब कब आपने ये कॉपी इवैल्यूएट की है, किस डेट को कितनी कॉपी इवैल्यूएट की है। आप AHE डिटेल्स में आ जाएंगे तो आपकी AHE की डिटेल्स आएगी, क्योंकि अभी ये एक्चुअल इवैल्यूएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो CBSE डिड नॉट डिसाइड येट देयर हु विल बी माई AHE, तो यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आ रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हेल्प डेस्क पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर और ये आपकी स्टैटिक IP यहाँ पे दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल ये एक्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है, दैट्स वाई ये IP कोई भी IP दिखाई दे रही जिस इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं। लेकिन रियल इवैल्यूएशन के टाइम पे यहाँ पे वही IP आनी चाहिए जो आपके स्कूल ने इवैल्यूएशन सेंटर के लिए रजिस्टर की है। ये IP वही IP एड्रेस होनी चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये जब OSM इंट्रोड्यूस हुआ था तब की है। अब इस वाले ऑप्शंस में और अब के ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस आ गया है। आप जैसा कि आप देख सकते हो लॉगिन के टाइम पर उस टाइम पर सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड फिर सेंड OTP हो रहा था, जबकि अब के लॉगिन फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ये कहूँगा कि आप इससे कुछ डिटेल्स ले सकते हैं, आप इस यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं, लेकिन कई जगह पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो यूज़र मैनुअल में जो ऑप्शंस, जो UI है और जो अभी एक्चुअल जो अभी चल रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे बॉटम में, तो आप देख सकते हैं एक लाइन है, ब्लैंक पेज है और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिसिंग हैं और अपडेटेड नहीं है। जबकि एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये लाइन जैसा ऑप्शन हटा दिया गया है, एक और नया ऑप्शन ऐड हो गया है RW, और बॉटम में NA का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे जो SOL है ये हट के क्या हो गया है, MS हो गया, यानी कि मार्किंग स्कीम, और बाकी तो लगभग सेम है। इसके ऑप्शंस में और जो अभी करेंटली UI है OSM पोर्टल का, उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। सो आई थिंक मैंने ये पूरा डैशबोर्ड आपको बता दिया है। जब आप होम पे जाएंगे, कंटिन्यू फॉर इवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा मेन असेसमेंट पे, जैसा कि ये है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। होम पे गए, कंटिन्यू फॉर इवैल्यूएशन कर दिया, हम आगे मेन असेसमेंट पे, राइट। अब हमें अपना इवैल्यूएशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, CBSE के डेटाबेस से स्कैन्ड कॉपी आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, अच्छा आप देख लीजिए यहाँ पे कई सारे, मैंने बताया था उसमें कि कई सारे ऑप्शंस वहाँ से अपडेट हो गए। देखिए लाइन वाला ऑप्शन चला गया है, RW ऐड हो गया है और यहाँ पे NA भी ऐड हो गया है। तो अब इसमें देखिए इतने पोर्शन में कॉपी दिख रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर पैनल या फिर आंसर शीट पैनल। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो इतना, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट पैनल या फिर इवैल्यूएशन एरिया, और जो बॉटम में दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बॉटम पैनल। और इसके अंदर इसको कैटेगराइज किया है, जैसे पेज नंबर जो पहला जैसे सारे रेड कलर के आ रहे हैं ये पेज नंबर्स हैं, ये सारे हमारे कंट्रोल्स हो गए। और ये जो एरिया देख रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है M से लेकर एग्जिट तक, इनको हम लोग बोलेंगे टूल्स। मैं इसी में आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई भी कॉपी इवैल्यूएट कर रहे हैं, जैसे मैंने ये स्टार्ट कर दी इवैल्यूएशन, मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया एंड देन आई हैव गिवन मार्क्स लाइक दैट 1 एंड देन 2, क्वेश्चन नंबर 3 को इवैल्यूएट किया, 4,
लेकिन मैंने अभी 10 क्वेश्चन इवैल्यूएट कर लिए हैं। इतने भी आपने इवैल्यूएट कर लिए, इनको हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपको इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इवैल्यूएशन छोड़ के जा सकते हो, फिर दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मुझे जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, सेव, और ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पर इवैल्यूएशन डैशबोर्ड से हटने के लिए एग्जिट पे क्लिक करूँगा। हो सकता है आपसे गलती से एग्जिट पे क्लिक हो जाए कभी, तो इसलिए इसने एक अलर्ट बॉक्स भी दिया है। जब आप इस पर अपनी कंफर्मेशन दोगे तभी एग्जिट होगा। ये मैं एग्जिट हो गया। ओके, अब मैंने दोबारा से, फॉर एग्जांपल अभी मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया और स्टार्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके जो 10 क्वेश्चन है वो पूरे इवैल्यूएटेड आपको यहाँ पे मिले हैं। ओके, सबसे पहले मैं कवर करूँगा इसका लेफ़्ट पैनल। तो चलिए देखते हैं लेफ़्ट पैनल क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब हम लोग लेफ़्ट पैनल यानी कि क्वेश्चन इवैल्यूएशन एरिया में आएंगे, तो सबसे पहले आपको मिलेगा स्क्रिप्ट आईडी। जब हम कोई भी आंसर शीट को इवैल्यूएट करेंगे, एवरी आंसर शीट इज़ हैविंग यूनिक आईडी, राइट। तो ये जो अभी हम लोग करंट इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका नंबर हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी यूज़र आईडी जिससे आपने लॉगिन किया है, और उसके बाद आपका रोल क्या है इस इवैल्यूएशन के अंदर। आप अगर एक इवैल्यूएटर हो तो यहाँ पर ई बनकर आ रहा है। अगर आप एक एच ई होंगे तो यहाँ पर ए बनकर आएगा, और अगर आप एक एच ई हैं तो ई की जगह पर एच बनकर आएगा। For evaluator, the number will start from E, from EHE A, and from HE H. उसके बाद हम लोग इस एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया को 4 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर, देन मैक्सिमम मार्क्स, देन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, एक्चुअली अवॉर्डेड मार्क्स, एंड देन स्टेप्स। जब हमें किसी भी क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को इवैल्यूएट करने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कैसे करेंगे, जो आपका माउस होगा उसका लेफ्ट बटन दबाकर। ओके, अब आप लास्ट वाले स्टेप को देखें। लास्ट स्टेप में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। इस वाले को हम लोग बोलेंगे करेंट स्टेप, ओके, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे टोटल स्टेप। टोटल स्टेप यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे मार्किंग टोटल 2 स्टेप्स की करनी है, और अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर 0 बनकर आ रहा है। ओके, ये जो 2 लिखा हुआ है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। मान के चलिए ऐसे अगर बनकर आ रहा है 0/1, तो इसका मतलब है मुझे एक ही स्टेप इसमें इवैल्यूएट करना, और अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अब आप नेक्स्ट इसमें देखें, सेम वही सीन है बट थोड़ा सा चेंज है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबाकर। और यहाँ पे आप देखें 0/6 लिखा हुआ है। 0 का मतलब अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। इसमें आपको टोटल कितने स्टेप इवैल्यूएट करने हैं, 6। ओके, अगर बच्चे ने सिर्फ 6 स्टेप में से पहला स्टेप ही अटेम्प्ट किया है और उसमें उसके मार्क्स कितने आए हैं, 1, तो आप बाकी तो उसने 5 स्टेप किए ही नहीं, यानी कि 2, 3, 4, 5 एंड 6 उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो आप उसको, क्योंकि आप उस बच्चे ने एक ही स्टेप अटेम्प्ट किया है तो आपने मार्किंग कर दी और आप नेक्स्ट आ गए, तो ऐसा नहीं है। सिस्टम क्या कहता है कि अगर बच्चे ने भले ही एक स्टेप अटेम्प्ट किया है लेकिन हमें मार्किंग इन 6 स्टेप्स की करनी होगी। तो अब कैसे होगी, बच्चे ने एक ही किया है तो उसमें यहाँ पर उसको 1 मार्क्स मिल गया, लेकिन बाकी के दूसरे में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, 0, तीसरे में क्या दिखाना पड़ेगा, 0, चौथे में भी 0, पाँचवें में भी और छठे में भी 0, तब जाके ये पूरे 6 स्टेप आपके कंप्लीट होंगे। ओके, तो यहाँ पर 6 स्टेप हो गए। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का बी। मैक्सिमम मार्क्स कितने देने हैं, 6। बच्चे ने कितने ऑब्टेन किए हैं, 0.5। टोटल कितने करने हैं, 6। अभी मैंने कर कितने लिए हैं, 3। अभी 3 और बाकी हैं। मान के चलिए उसने आगे के 3 किए ही नहीं, तो हमें चौथा, पाँचवा और छठा स्टेप में क्या दिखाना पड़ेगा, 0, 0 और 0। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है ये 3 कलर्स का हो सकता है। पहला इसका कलर कौन सा होगा, पिंक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर है इसका। और कौन सा कलर हो सकता है इसका, या तो ये येलो होगा और या तो ये ग्रीन होगा। मैं तीनों की कंडीशंस आपको बता देता हूँ कि अगर इसका कलर पिंक है लास्ट वाले ब्लॉक का, तो इसका मतलब ये है कि
तब ये लास्ट वाले ब्लॉक का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। हमें उस ब्लॉक को कैसा करना है, ग्रीन करना है। तो ग्रीन कब होगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 7th बी में 6 स्टेप हमें इवालुएट करने थे, मैंने 6 के 6 स्टेप इवालुएट कर लिए, तो इसका कलर कैसा हो गया, येलो कलर हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। लेकिन अभी भी ये कलर इसका ग्रीन नहीं है। ये क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। CBSE का ये इवालुएशन सिस्टम कहता है कि अगर आपने 6 के 6 स्टेप अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया है इस वजह से मैं 6 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपने 6 के 6 स्टेप इवालुएट कर लिए तो आपको इसका सम दिखाना पड़ेगा टोटल, और वो सम मैं कलर बता देता हूँ। उस सम का कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर से होगा। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में आपको। अब आप देखिए यहाँ पर बच्चे ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जो कि यहाँ पे सही आया नहीं है, लेकिन उसने पहला स्टेप ये किया। दूसरा स्टेप देखिए, स्टेप 2 लिखा हुआ है, स्टेप 2 में उसको कितने मार्क आए हैं, 0.5। स्टेप 3 में 0। स्टेप 4 में कितना मार्क आया है, 1। स्टेप 5 में कितना मार्क्स आया है, 1। स्टेप 6 में कितना मार्क आया है, 0। तो हमें इस तरह से देखिए, मैंने टोटलिंग दिखा दी, ये टोटलिंग दिखा दी, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्टेप, टोटल कितने मार्क आए हैं, 2.5। जब तक आप ये टोटलिंग नहीं दिखाओगे ये लास्ट वाला ब्लॉक आपका ग्रीन नहीं होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आएगा कैसे। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मेक श्योर कर ले कि यहाँ पे येलो हो गया है। येलो होने के बाद आप अपने माउस से ये लेफ़्ट वाला बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही, और जिस जगह पे आप डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे ये टोटलिंग अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, जैसे ही टोटलिंग आएगी ये ब्लॉक कैसा हो जाएगा, इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। जब ये ब्लॉक ग्रीन हो जाएगा तब ये इवालुएशन सिस्टम मानेगा कि आपने 7th बी को पूरी तरह से इवालुएट कर लिया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को इवालुएट कर सकते हैं, या आपने उसका सम शो नहीं किया है, तब आपको ढूंढना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा कि 7th बी कहाँ पे है। उससे अच्छा यही है कि जब आप इवालुएट कर रहे हैं उसी समय पर आप क्या करो कि उसका टोटल वहाँ पर ला दो। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8th ए और 8th बी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9th ए एंड 9th बी, इनमें आप देखेंगे तो इन दोनों का कलर वो चेंज है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8A वो ब्लैक है, 8B क्या है, ये रेड है, और 9th A ब्लैक है, 9th B क्या है, रेड है। जब कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो इसमें आप समझ जाइए इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यहाँ पर और लिखा होगा, ऐसा कुछ। ये आपको कलर से ही पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8A की। बच्चे ने अगर 8A क्वेश्चन किया है जिसमें आने कितने मार्क्स से 4 और बच्चे के कितने आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं, तो इन दोनों में कलर के अकॉर्डिंग तो और लगा हुआ है। तो बच्चे ने 8A अटेम्प्ट कर दिया है, तो आपको 8th बी का क्या करना होगा। 8th बी तो आपको कॉपी पे क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके NA बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या लिख कर आ जाएगा, NA लिख कर आ जाएगा। इसी तरह से मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे ने 9th बी को अटेम्प्ट किया है, 6 मार्क्स आने थे, उसके 5 मार्क्स आए, बट 9th ए में हमें पहले क्लिक करना होगा, फिर NA पे क्लिक करना होगा, जिससे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, NA बनकर आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि कलर कौन सा है, और अगर रेड और ब्लैक कलर है तो उन दोनों में चॉइस होगी, या तो आपको A करना होगा या तो आपको B करना होगा। तो आई होप ये एरिया जो लेफ़्ट पैनल है क्वेश्चन इवालुएशन एरिया, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे लास्ट में देखिए आपको पूरी समरी दिखाई दे रही होगी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80, बच्चे ने ऑब्टेन कितने किए, 2.5, क्योंकि मैंने जो एक ही क्वेश्चन इवालुएट किया था जिसमें उसे 2.5 मिले थे, तो आप यहाँ पर उसकी टोटलिंग देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैनल पर, जो कि हमारा है सेंटर पैनल, जिसे हम लोग आंसर शीट पैनल भी कहते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी सबसे पहला पेज आएगा। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो पहला पेज है ये ऑफलाइन इवालुएशन के लिए बहुत ही यूज़फुल था, क्योंकि जो हमारे इवालुएटर्स थे वो यहाँ पर नंबर लिखते थे, और कोऑर्डिनेटर्स थे HE वो सारे वेरिफिकेशन करते थे। एज यू कैन सी सबने अपना यहाँ पर OCS ID वगैरह लिख रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑनलाइन यानी कि OSM में इसका कोई यूज़ है नहीं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में CBSE इस पेज को या तो
स्कैन करना बंद कर देगा या फिर इस पेज को कॉपी से हटा ही देगा, क्योंकि इसका कोई मतलब OSM के अंदर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं 1,44,256 अप्रॉक्स। तो अगर आप इस पेज की बात करें, अननेसेसरी इसको उतने ही टाइम यानी कि 1,44,256 टाइम स्कैन करना पड़ेगा। एनीवेज, हम आते हैं अपने कॉपी को इवैल्यूएट कैसे करेंगे। पहला पेज, अच्छा एक और चीज़ है, आपको हर पेज पे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मैंने इस पेज को देख लिया है। अच्छा, आंखों से देख लेना इट इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको कुछ ना कुछ उस पर एनोटेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पेज को देख तो लिया है बट मुझे सिस्टम को बताना है ना कि मैंने इसको देख लिया है। तो आप देख सकते हो बॉटम में ये आई का आइकन है जिसको व्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक कर दिया। आप देखिए आई का आइकन बनकर आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे ये ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन कलर का मतलब ये व्यूड है, सीन है, ठीक है, और इस पर कोई ना कोई एनोटेशन की गई है। ग्रीन कलर का मतलब यही है। अभी बाकी पेजेस को मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो ये सारे रेड कलर के हैं। तो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे पेज ब्लैंक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो सिस्टम के, मैंने तो देख लिया है पेज को बट हमें सिस्टम को बताना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो ब्लैंक पेज का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी आप देखिए जो हमारा पेज नंबर 2 है वो भी ग्रीन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कितना, पहले का कितना मार्क है 2। तो मार्किंग कैसे करेंगे ये देखिए, जिस भी क्वेश्चन की मार्किंग करनी है और उस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे आप क्लिक करोगे ये ग्रीन कलर का बॉर्डर बनकर आ जाएगा। ये ग्रीन कलर का बॉर्डर ये बताता है कि करेंटली हम किस क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने अभी साइड पैनल में आपको बताया था कि इसमें इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होने वाले हैं, 2 स्टेप्स हैं। उन्होंने देखिए 2 स्टेप में मार्क्स भी यहाँ पे मार्क भी दिए हुए हैं, तो मुझे इसमें 2 स्टेप पे मार्किंग करनी होगी। अच्छा, मार्किंग करेंगे कैसे, आपको अपने माउस से स्क्रीन पे देखिए माउस बनकर आ रहा है, लेफ़्ट क्लिक करना है। मुझे मार्क्स की मेन्यू लाने के लिए माउस का राइट क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए ये राइट क्लिक होता है। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह के मार्किंग शो होगी, और किसी भी मार्क को अवॉइड करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए या कंफर्म करने के लिए हम माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मुझे 1 मार्क्स देना है, यहाँ पे मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए अभी भी ये वाला बॉक्स पिंक कलर का ही है, जैसा कि मैंने अपने लेफ़्ट पैनल जब बताया था आपको तो उसमें भी बताया था कि ये पिंक रहेगा तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब तो हमें स्टेप टोटल कितने करने हैं, 2। फिर से मैंने राइट क्लिक किया और फिर से देखिए वो मार्किंग आ गई, मैंने यहाँ पे कर दिया 1। अब देखिए मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने एवेलुएट करने थे, 2, और 2 के दोनों कर लिए। इसका कलर किस में टर्न हो गया, येलो में हो गया। लेकिन अभी भी मैंने बताया था आपको उसमें कि जब तक आप इसके सम या फिर इसकी टोटलिंग नहीं दिखाओगे ये ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन का मतलब ये कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जब ये येलो हो जाए तो माउस का लेफ़्ट क्लिक 2 बार दबाना है। स्क्रीन पे देखिए जैसे माउस आ रहा है इसको 2 बार लेफ़्ट क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से ये आ गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर का भी हो गया। अब मैं आपको ये वाला केस बताता हूँ। मैंने ये लेफ़्ट पैनल में जब आपको जानकारी दी थी तो उस समय ही बता दिया था। अब आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 4A कितना स्टेप है, 1 स्टेप है, और 4B में भी कितना स्टेप है, मैक्सिमम मार्क है 4। अब यहाँ पर ये रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मैं उसका लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी कि रेड एंड ब्लैक होगा तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। अब ये देखना कि बच्चे ने कौन सा इसमें से अटैम्प्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने 4th का A अटैम्प्ट किया है, यानी कि मुझे इसे इवैल्यूएट करना है और मैं मार्किंग इसमें बच्चे ने जिस तरह का आंसर लिखा उस हिसाब से करूँगा। यहाँ पे देखिए सारे पॉसिबल मार्क्स आ गए और इसमें से उसके आंसर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने 3 देना है, तो मैंने यहाँ पे 3 उसे अवॉर्ड कर दिए। अब जैसे ही आपने 3 अवॉर्ड किए, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 1 था ये ग्रीन हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट 4th B, बच्चे ने 4th A कंप्लीट कर लिया है, तो अब 4th B क्या हुआ, हमारा नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। तो उसे हमें सिस्टम को कैसे मार्क करना है, यहाँ पे देखिए बॉटम में NA लिखा हुआ है ये, और एक NA यहाँ भी दिया हुआ है। मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वाले NA को ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से बहुत कम है, ये जल्दी एक्सेस हो जाएगा कंपेयरिंग टू दिस। ओके, और अगर आप इसमें कुछ जैसे कोई क्रॉस कर रहे हैं या टिक कर रहे हैं, अगर आपका माउस पॉइंटर यही है तो फिर आप ये वाले NA को एक्सेस कर सकते हैं। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और मैंने क्लिक कर दिया नॉट अटेम्प्टेड पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे अनजाने में नॉट अटेम्प्टेड पे क्लिक हो जाएगा, तो इसलिए
सिस्टम आपको एक बार में क्लिक करने नहीं देगा, ये आपसे कंफर्मेशन भी लेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मार्क इट एज नॉट अटेम्प्टेड। ओके कर दिया तो यहाँ पे देखिए NA बनकर आ गया। तो इस तरह से मैं पूरी कॉपी आपको इवैल्यूएट करके दिखाने वाला नहीं हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार ये वाला देख लेता हूँ, फर्स्ट का फोर्थ। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट के फोर्थ पे। दिस इज द फर्स्ट फोर्थ। इसमें भी हमको 2 स्टेप में मार्किंग करनी है, सेम वही सिचुएशन है। हम पहले राइट क्लिक करेंगे, मार्क्स आ जाएंगे, जो उसने आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे 0.5 दे रहा हूँ, ये एक स्टेप हो गया। देखिए यहाँ पर एक स्टेप हो गया, 0.5 यहाँ पे लिख कर आ गया। अभी एक और में एक स्टेप में और मार्किंग करनी है, तो फिर से मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे 1 दे दिया। तो यहाँ पे येलो कलर का हो गया, मतलब हमने दोनों स्टेप को इवैल्यूएट कर लिया है, बट इसका टोटल अभी शो नहीं किया, इस वजह से ये येलो है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग इसे सबमिट करेंगे तो ये एरर आ जाएगी। और इसकी जो हम सम है वो हमें लाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये इसका सम आ गया, ये ग्रीन हो गया। तो इस तरह से ये आपको सारे क्वेश्चन इवैल्यूएट करने हैं। अब मैं आ रहा हूँ इन सारे फंक्शंस के ऊपर। ये आपको दिखाएगा कि डे वाइज आपको कितनी कॉपी करनी है। मान के चलिए अभी ड्राई रन के समय CBSE हमको एक दिन में मैक्सिमम 2 कॉपी चेक करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 कर सकते हैं, हम पहली कॉपी उसमें से चेक कर रहे हैं। यहाँ पे करंट आपके ये पेज नंबर आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 32। अच्छा, ये जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है, वो आप ज़रूर मैंने पहले ही बताया कि आप उसे ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पे देखिए पेज नंबर क्या लिखा रहा है, करंट पेज नंबर इज 7 एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 32। अभी तक इस कॉपी को चेक करते हुए मैंने कितना समय ले लिया है, 11 मिनट 26 सेकेंड। ये ब्राइटनेस है, आप अपने कॉपी की स्कैन कॉपी के अकॉर्डिंग इस ब्राइटनेस को घटा और बढ़ा सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से, ठीक है। नीचे कंट्रास्ट है, सेम वही सिचुएशन है। अगर आपसे कम ज़्यादा हो जाता है तो आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर दें, ये बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगा। ये आ जाता हूँ मैं प्लस। प्लस से क्या होगा, कॉपी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आई साइड वीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक कर लेंगे। प्लस करते ही यहाँ पे आपको प्लस करने जाना होगा, ये जूम होता चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हो। जूम आउट यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये छोटा दिखाई देगा इस तरह से, और ये जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट और जूम इन। मैंने यहाँ पे जूम इन बहुत ज़्यादा कर लिया है। अब जूम आउट करने के लिए मुझे कई बार क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, तो एक ही बार में आप 100% पे क्लिक करके जो डिफ़ॉल्ट हमारा लेवल था उस पर हम पहुँच जाएंगे। ये मार्किंग का सिंबल है। जब हम लोग कॉपी को इवैल्यूएट कर रहे होंगे तो ये बटन हमारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब येलो होने का मतलब ये है, इनमें से कोई भी अगर येलो है तो इसका मतलब है करेंटली वो सेलेक्टेड है और उसकी जो भी उसका जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए रेडी है। अभी इस समय देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर येलो कौन सा है, क्रॉस वाला। तो इसमें देखिए अगर मान के चलिए ये वाला क्रॉस मुझे दिखाना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर दिया कि क्रॉस बनकर आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव कौन सा है, येलो 1। तो इनमें से येलो कलर हमको ये बताता है कि करेंटली कौन सा इसमें से टूल एक्टिव है। ओके, अभी मुझे मार्किंग करनी है तो मैं मार्क वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करूंगा, इसको मार्किंग कर दी मैंने 0। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ क्रॉस कर देना इज़ नॉट सफिशिएंट। क्रॉस तो सिर्फ आपने बता दिया कि ये सही नहीं है, लेकिन मार्किंग फिर भी आपको करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने देखिए ये हो गया। जैसे ना हम लोग इवैल्यूएशन करते समय पेन से क्रॉस करते हैं और पेन से टिक लगाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट, हमें मार्किंग भी करनी पड़ती है कि इसमें 0 मिला है, इसमें 1 मिला है। सेम सीन यहाँ पर भी है। तो फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में मैंने राइट क्लिक किया, 1 कर दिया। दिस इज़ हाउ वी कैन गिव। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या ये टिक का मतलब क्या है और ये क्रॉस का मतलब क्या है। इस वाले क्वेश्चन में 4th A क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि रियल एनवायरनमेंट में भी आप मार्किंग तो कर देते हो, लेकिन उसका जो सपोज उसने आंसर कितना लिखा हुआ, 3 पेजेस का आंसर लिखा हुआ है, तो पहले दूसरे पेज पे हम लोग क्या करते हैं, टिक मार्क लगाते हो। मार्किंग कहाँ करते हैं, लास्ट पे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है कि अगर मैंने मार्किंग यहाँ पे कर दी है तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हम लोग कौन सा मार्क लेंगे, ये बिल्कुल आप जो अपने रेड पेन से इवैल्यूएट करते हो, टिक लगाते हो, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक लगाया इन्होंने, तो मैंने यहाँ पे भी टिक लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने टिक लगा दिया कि हाँ मैंने ये देख लिया है। तो ये हमारा टिक हो गया। अब क्रॉस क्या है, सेम वही सिचुएशन। मैं उस तरह की सिचुएशन इसमें ढूंढता हूँ कि अगर क्रॉस वाली सिचुएशन कोई मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज़ तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हुआ है, कटा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस पे क्लिक किया, देखिए येलो कलर का हो गया, मतलब क्रॉस एक्टिव है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने बताया कि ये गलत है, लेकिन इस पर मार्किंग भी करनी पड़ेगी, तो मैंने राइट क्लिक कर दिया। ये कौन सा है, 8 का फर्स्ट है,
तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, और यहाँ पे राइट क्लिक करके 0 मार्किंग कर देते हैं। तो सो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ एम, टिक एंड क्रॉस। अब हम लोग आई के आ जाते हैं। आई वाले पे मैंने पहले ही आपको यूज़ करके बताया है कि अब आई वाले बटन का क्या है। जैसा कि पहला पेज है, इस पे ना तो आप टिक लगा सकते हो, ना कोई मार्किंग कर सकते हो, ना ब्लैंक इसको आप जो है डिक्लेयर कर सकते हो कि ये ब्लैंक है। तो आपको क्या करना होगा कि मैंने इस पेज को देख लिया है, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये आई वाले बटन पे क्लिक करना है। आई देखिए बटन येलो कलर का हो गया और यहाँ पे क्लिक करना है, और इस तरह से ये हमारा व्यू कैटेगरी में आ गया। इसके बाद दिया हुआ ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है, जैसे आप देखिए, आप जब आंसर शीट इवैल्यूएट करते हैं, 32 पेजेस की हमारी आंसर शीट है और बच्चे ने सिर्फ 20 पेजेस तक कुछ भी लिखा हुआ है। 21 से लेकर 32 तक अब हमारे क्या है, ब्लैंक। तो हम लोग क्या करते थे, रेड पेन से लाइन खींच देते थे इस तरह से, क्योंकि वो ब्लैंक था। लेकिन यहाँ पे तो हमको सिस्टम को बताना पड़ेगा ना कि ये पेज ब्लैंक है। तो ब्लैंक पेज के लिए हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं ये येलो हो गया, मतलब ब्लैंक पेज वाला टूल अभी एक्टिव है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप एक और चीज़ देखें, हम अभी करेंटली किस पेज पे हैं, 21 पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 21। टोटल पेजेस कितने, 32। करेंटली हैं हम लोग 21 पेज पे। अब 21 पेज का कलर कैसा है, अभी देख सकते हैं आप। 21 पेज का कलर कैसा है, रेड। जैसे ही मैं इसको ब्लैंक पेज डिक्लेयर करूंगा, ये अपने आप क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब कि आपने उस पेज को विजिट भी किया है और उस पर कोई ना कोई एनोटेशंस दे दी हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे ने फर्स्ट का 9th ऑप्शन जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड कर देंगे। ओके, अभी 10th आपको अगर मिल रहा है तब तो सही है। यहाँ पे 10th भी नहीं मिल रहा, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, नॉट अटेम्प्टेड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 की कंटिन्यूएशन इस पेज पे भी है और इस पेज पे भी है। तो मुझे इस पेज पे क्या करना होगा, यहाँ से टिक मार्क लेना होगा। हम लोग रियल लाइफ में भी यही करते हैं कि जैसे बच्चे ने एक क्वेश्चन 4 पेजेस पे अटेम्प्ट किया है, तो बाकी पहले 3 पेजेस पे हम लोग टिक मार्क लगाते हैं विद रेड पेन। तो हम लोग यहाँ पर एक टिक मार्क, क्योंकि बच्चे को मैंने यहाँ पर अवॉइड कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर टिक मार्क लगा दूंगा इस तरह से। ये देखिए, ठीक है ना। इस 7th क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ 6। बच्चे ने कौन सा किया, यहाँ पे मेंशन भी किया है ए। तो मैंने पहले क्वेश्चन में 1 मार्क दिया, एंड दूसरे में भी 1 दे दिया, तीसरे में भी 1, एंड देन 4th क्वेश्चन में भी, और इस तरह से मैंने सारे इवैल्यूएट कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 का ए तो उसने अटेम्प्ट कर लिया, बी तो ऑप्शनल था। मुझे इन सभी में क्या करना पड़ेगा, नॉट अटेम्प्टेड, क्योंकि उन दोनों के बीच में चॉइस थी, इसलिए मुझे इन सबको नॉट अटेम्प्टेड कंसीडर करना पड़ेगा इस तरह से। क्वेश्चन के 5th और 6th में चॉइस थी, तो यहाँ पे बच्चे ने 5th कर लिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे 5th और 6th दोनों अटेम्प्ट कर लिए हैं, जबकि इन दोनों के बीच में चॉइस है। अब यहाँ पे 5th भी अटेम्प्टेड है और 6th भी अटेम्प्टेड है, तो आप ये देख लें कि आपको मार्क्स किस में करने हैं। मान के चलिए 5th बच्चे ने अटेम्प्ट किया और वो गलत है, और 6th भी किया है वो सही है, तो हम प्रीफर यही करते हैं कि आप 6th वाले में मार्क्स दो। तो 6th वाले को मैंने राइट क्लिक किया, क्योंकि ये उस पर था। मैं इसे नॉट अटेम्प्टेड में डालूंगा और इसको क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में 1 तो आपको कंपलसरी करना है, 2 और 3 के बीच में चॉइस है। तो ये 1 में हो गया, 1 नंबर मैंने दे दिया, और बाकी कोई किया ही नहीं है बच्चे ने क्वेश्चन, तो मैं इसे नॉट अटेम्प्टेड में डाल दूंगा इस तरह से। ठीक है। 12 में आ जाता हूँ। 12 का बी देखिए बच्चे ने किया है, 12 का बी, और कितनी मैक्सिमम मार्क्स है, 5 है, तो मैंने राइट क्लिक करके 5 मार्क्स दे दिया फॉर एग्जांपल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे ने किस तरह का आंसर लिखा है। मैंने 5 कर दिया इस पर। और क्वेश्चन नंबर ए जो कि ऑप्शनल था, इसको मैं नॉट अटेम्प्टेड में कंसीडर कर लूँगा। अब 13 पे आ जाते हैं। अच्छा देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 12th बी की मार्किंग यहीं कर दी है, लेकिन आंसर इसका नेक्स्ट पेज में भी कंटिन्यू है, तो हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 में भी चॉइस है, या तो ए करेगा बच्चा या तो बी,
और इसमें अगर बच्चे ने ए बी मेंशन नहीं किया है तो आप क्वेश्चन पेपर यहाँ QP पे क्लिक करके देख सकते हो कि ए है या बी है। फिलहाल मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ कि बच्चे ने बी क्वेश्चन किया है, तो मैंने राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे मार्किंग आप कर सकते हो, लेकिन मैं करूँगा मार्किंग नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टिक लगाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पे भी टिक लगाऊंगा ऐसे ऐसे। अब मैं मार्किंग करने वाला हूँ, तो राइट क्लिक किया और इसको 5 नंबर मैंने अवॉइड कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 13A जो कि ऑप्शनल था, इसे मैं नॉट अटेम्प्टेड कंसीडर कर लूँगा। तो अभी देखिए, अभी मैंने कई सारे क्वेश्चन जैसे ये रहा ना, ये मैंने सारे छोड़ दिए हैं। ठीक, अब मैं इसे सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो हमारे सामने एरर आ जाएगी। अब मैंने लगभग अपने हिसाब से कर लिया है। सबमिट करने से पहले मैं इधर चेक करूँगा लेफ्ट पैनल में कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जिसकी मार्किंग छूटी हो। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की सारे मार्क्स छूटे हुए हैं। मैं देखूँगा क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सही है, 1 कर दिया। दूसरा गलत है, तो मैंने यहाँ पे इसे 0 कर दिया। तीसरा, इसको मैंने 1 कर दिया। चौथा 1 कर दिया यहाँ पर भी। अब आ जाते हैं 5th पे। 5th में राइट क्लिक किया, मैंने आधा नंबर दे दिया है। 6 पर यहाँ पे मैंने 1 दे दिया। 7 पे 1, 8 पे 1। अब देखते हैं यहाँ पर 1 दे दिया मैंने। अब सारे क्वेश्चन लगभग इवैल्यूएट कर लिए हैं। सबमिट करने से पहले मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है। मेरे हिसाब से अब ये सारा कंप्लीट हो गया, सब में मार्किंग हो चुकी है। लेकिन आप देखें 2 का जो 3rd है उसमें 2 स्टेप से मैंने भी 1 की ही मार्किंग की है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेकंड क्वेश्चन को मार्क दे देता हूँ। येलो हो गया तो आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया डबल क्लिक, ये ग्रीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, यहाँ पर भी सेम वही करना है हम लोगों को। राइट क्लिक करके पहले मार्किंग करनी है, फिर डबल क्लिक करके उसकी टोटलिंग। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th में मैंने राइट क्लिक किया, मार्किंग दी और डबल क्लिक। सो अब देखिए लगभग सारे ग्रीन हो चुके हैं। तो अब मैं सबमिट करने के लिए रेडी हूँ। जब आपके हिसाब से आपकी आंसर शीट पूरी तरह से इवैल्यूएट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, जो स्टेप वाला कॉलम है इसको ऊपर से नीचे तक देखना है। कोई भी येलो या पिंक नहीं होना चाहिए, सारे ग्रीन होना चाहिए। अभी देखिए सारे ग्रीन है, तो यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि सारे क्वेश्चन मैंने इवैल्यूएट कर लिए हैं। अब हम लोग इस जगह पे आते हैं। आप देखिए 1 से लेकर 21 तक सारे पेजेस क्या हैं, ग्रीन है, यानी कि मैं उस पर विजिट कर चुका हूँ और उस पर मैंने कुछ ना कुछ एनोटेशन कर रखी है। पेज नंबर 22 से लेकर 32 तक अभी अनविजिटेड है, या अभी तक मैंने उन्हें व्यू नहीं किया है, या उस पर कोई भी एनोटेशन नहीं की है। तो उसके लिए मुझे 22 पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आ गया मैं, क्योंकि ये ब्लैंक पेज है तो मुझे इसे एज अ ब्लैंक पेज मेंशन करना पड़ेगा। मैंने इन सभी को ब्लैंक पेज मेंशन कर देना है इस तरह से, लाइक दिस। तो सारे पेजेस को आपको क्या करना है, ब्लैंक पेज बताना है। तो अब आप यहाँ पे देखें हमारा पहला पॉइंट क्या है, ये जो स्टेप्स लिखा हुआ है इसके 1 से लेकर सारे ग्रीन होने चाहिए, जो कि हैं, यानी कि डन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो पेजेस है ये सारे ग्रीन होने चाहिए, वो भी हो चुके हैं। तो अब मैं इसे सबमिट करने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरह का एक कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप सारे मार्क्स चेक कर सकते हो। अभी भी आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिखाई देंगे कि आपने कितने मार्क्स बच्चे को दिए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे। इट इज़ सेइंग प्लीज़ चेक एंड कन्फर्म। जब हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हमारी एक कॉपी इवैल्यूएटेड हो जाएगी। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप फाइनल सबमिट करने जा रहे हों तो उससे पहले आप बच्चे की स्क्रिप्ट आईडी ये रही लेफ़्ट पैनल में देखें, और इसके टोटल मार्क्स अपने पास एक डायरी में नोट कर ले। हालांकि ऐसा कोई सर्कुलर में या कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप ये नोट करें। आई विल रिक्वेस्ट यू फॉर योर पर्सनल डेटा, फॉर योर पर्सनल रिकॉर्ड, आप इस चीज़ को मेंशन ज़रूर करें एज एन इवैल्यूएटर अपनी डायरी पे कि स्क्रिप्ट नंबर क्या है और आपने उसको कितने मार्क्स दिए हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम डिजिटल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास अपना रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ये बॉटम में जो आप
टूल्स देख रहे हो इन सब का क्या काम है। सबसे पहला है एम स्टैंड फॉर मार्किंग। जब आप यहाँ पे कॉपी इवैल्यूएट कर रहे होगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्वेश्चन नंबर 17 मुझे चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और 17 मुझे यहाँ पे मिला। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं मार्किंग कर रहा हूँ तो एम वाला जो हमारा टूल है वो येलो कलर से हाईलाइटेड है, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और 1 मार्क दे दिया। ठीक है, तो मार्किंग करते समय ये हम इसका यूज़ करेंगे एम का मतलब है मार्किंग और येलो कलर का मतलब है करेंट सेलेक्टेड टूल। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं RW पर। RW क्या है? RW अभी तक जो पुराना हमारा सिस्टम था, जो पोर्टल था, उस पर RW नहीं था, ये अभी थोड़े दिन पहले ऐड किया है CBSE ने। तो RW का मतलब है रफ़ वर्क। जहाँ पर भी एक रफ़ वर्क बच्चा करता है कॉपी के ऊपर, तो मुझे आपको एज एन इवैल्यूएटर ये बताना पड़ेगा कि ये बच्चे ने इधर साइड में क्या किया हुआ, रफ़ वर्क किया है। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें इसको रफ़ वर्क कंसीडर करना चाहता हूँ, जो कि है नहीं, फिर भी एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये जो है एज अ रफ़ वर्क कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाता हूँ नोट्स क्या है कि मैंने जैसे ये क्वेश्चन इवैल्यूएट किया 30, क्वेश्चन नंबर 30 का ए, राइट क्लिक किया और बच्चा ये समझ रहा है कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो सारा सही है और मुझे पूरे 3 नंबर मिलेंगे। बट मैंने क्या किया, 2.5 यहाँ पर दिया। आधा नंबर मैंने किस चीज़ का कट किया है वो मैं यहाँ पे नोट्स में लिख सकता हूँ। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, नोट्स देना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो कि नोट वाला जो टूल है वो करेंटली येलो कलर पे हो गया, यानी कि ये एक्टिव है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने ये नोट्स की एक पॉपअप आ जाएगा और पॉपअप आने के बाद मैं यहाँ पे अपना रीज़न मेंशन कर सकता हूँ कि किस वजह से मैंने उसका आधा मार्क कट किया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यू मेंशन्ड रॉन्ग स्लाइसिंग इन फॉर लूप। ये मैंने यहाँ पर नोट दे दिया है, सबमिट कर दिया। रीज़न आपको देखना है, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, रीज़न आपको। अब अगला क्या है, रिपीट आंसर। तो अब मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बच्चा पहले से अटेम्प्ट कर चुका है, मैंने उसे मार्क्स भी दे दिए हैं, और सेम क्वेश्चन बच्चा किसी दूसरे पेज पे दोबारा अटेम्प्ट करता है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा बच्चे को कि ये रिपीट आंसर है, बट मार्क्स उसमें अवॉर्ड नहीं करने हैं। अब आ जाते हैं कि बच्चे ने एक क्वेश्चन किया है, मान के चलिए ये 32, लेकिन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 32 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, बट बच्चे ने 32 डाल दिया है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके लिखेंगे रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे आने वाला हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 मैं इवैल्यूएट करने जा रहा हूँ, तो मैंने राइट क्लिक इस पर किया और मैंने इस पे 0 दे दिया। ओके, अगले वाले क्वेश्चन में मैंने दे दिया 1 नंबर। बाद में सोचता हूँ कि उसने क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट किया है और मैंने इसको 0 कर दिया, नहीं यहाँ पर 1 होना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर मार्क्स ऑलरेडी दे दिए हैं और अब आप उनके अंदर चेंजेस करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैंने अवॉर्ड किया है क्वेश्चन उस पर क्लिक करना पड़ेगा। याद रहे ये ब्लैक कलर का बॉर्डर चारों तरफ बनकर आ जाना चाहिए, जैसे इस पे आ गया है। और उसके बाद मैं किस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ट्रैश है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मार्क्स डिलीट हो गए। अब आप देखिए 37 का पहला वाला राइट क्लिक करता हूँ, इसको 1 मार्क दे देता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट द गिवन नंबर्स एंड यू कैन अपडेट द नंबर्स बाई क्लिकिंग ऑन ट्रैश आइकन। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या मैं एक साथ मल्टीपल नंबर्स यानी कि मार्क्स को डिलीट कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि एक एक करके डिलीट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आंसर है इसका यस, वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल क्वेश्चन एट अ टाइम एंड वी कैन ऑल्सो डिलीट द मार्क्स एट अ टाइम। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस पर मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने इस पर क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे मल्टीपल सिलेक्शन होता जा रहा है। ठीक है, जिस पे मैंने मार्क्स दिए होंगे वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा और जिस पे 0 है वो नॉर्मल ब्लैक बॉर्डर में रहेगा। देखिए मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए और मैं ट्रैश पे क्लिक करता हूं, तो एक साथ सारे के सारे मार्क्स डिलीट हो गए। अब आप इनके ऊपर अपने अकॉर्डिंग जो मार्क्स आपको देने थे वो आप दे सकते हो। उसके बाद है स्क्रिप्ट कमेंट। इसका फिलहाल कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल यू वांट टू गिव एनी कमेंट ऑन स्क्रिप्ट देन यू कैन गिव एंड यू कैन सबमिट हियर। अब आ जाते हैं सेव। अब सेव का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मान के चलिए आप एक आंसर शीट इवैल्यूएट कर रहे हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन इवैल्यूएट किए। अब मुझे इसी बीच में कहीं जाना पड़ जाए, अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा तो ये जो 4 मैंने क्वेश्चन इवैल्यूएट किए हैं ये सारे वैनिश हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने अपने 4 क्वेश्चन इवैल्यूएट किए हैं
वो वैसे ही के वैसे सिस्टम में सेव हो जाए। अगली बार मैं जब ये आंसर शीट चेक करूं तो मुझे ये 4 क्वेश्चन चेक हुए मिले। तो उसके लिए आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, सेव पे। अब जो नेक्स्ट है वो है एमएस का मतलब है मार्किंग स्कीम। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मार्किंग स्कीम आ जाएगी। अभी इस समय क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा अपडेटिंग पे लगा हुआ है सीबीएसई का, तो इस समय अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये आ जाएगा जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में क्लिक करेंगे। मार्किंग स्कीम पे क्लिक करेंगे तो मार्किंग स्कीम आपके सामने आ जाएगी, जिसे हम लोग सॉल्यूशन भी, इससे पहले ये सॉल्यूशन नाम से था SOL, बट अभी थोड़े दिन पहले ये अपडेट होके MS हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे, सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पर भी आप इवेलुएशन करने जाएंगे वहां पर आप उस इवेलुएशन सेंटर से क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम की हार्ड कॉपी ही ले लें। जब कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे और क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर हमारी स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। तो पहले मुझे क्वेश्चन स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि जितने समय के लिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर है, आपका इवैल्यूएशन उतनी देर के लिए डिले हो जाएगा। तो अगर आपके पास प्रिंटेड कॉपी है तो आपकी जो इवैल्यूएशन स्क्रीन है वो डिले नहीं होगी। आप क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी पे देखेंगे और यहाँ पे इवैल्यूएट साथ ही साथ करते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा UFM। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक रीज़न आपको मिलता है तो आप उसे एज अ अनफेयर मीन्स डिक्लेयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं रिजेक्ट पर। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इवैल्यूएटर है कि आप सारे पेजेस को चेक कर लें कि सारे पेजेस यहाँ पर हैं या नहीं है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि ये जो कंटेंट है पेज के ऊपर, सारे पेजेस पे आप कंटेंट चेक कर लें एक बार कि सारे विजिबल हैं या नहीं है, कोई पेज मुड़ा हुआ या फटा हुआ तो नहीं है, या कोई ऐसा पेज स्कैन्ड तो नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उसे बिना इवैल्यूएट करे डायरेक्ट रिजेक्ट पे क्लिक कर दें। रिजेक्ट करने के लिए आपके कुछ पॉसिबल रीजंस हैं, यहाँ पे आप रीज़न देख लीजिए। अगर आपका रिजेक्ट करने का रीज़न इसमें मेंशन नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरे रीज़न मेंशन कर सकते हैं। जैसे जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी रिव्यू होने के लिए सीबीएसई के पास चली जाएगी और सीबीएसई इसी कॉपी को दोबारा से क्लियरली स्कैन करके या जो आपने रीज़न दिया है उसको दूर करके फिर से आपको कॉपी ये मिल जाएगी। अब उसके बाद है सबमिट हम लोग कब क्लिक करें, जब सारे मार्क्स चेक हो जाएंगे तब सबमिट पे क्लिक करेंगे। और एग्जिट है कि अगर हम लोग इवैल्यूएशन से निकल कर बाहर आना चाहते हैं तो हम लोग एग्जिट पे क्लिक करेंगे। So now I think that the evaluators, those who have seen this video minutely, it will be a very easier one for you to check the copies thoroughly. Thank you so much, and for these sort of informative videos, please follow my channel. My channel's name is Eclectic Explorer Moon. And one more thing, so after watching this video, if you are having any sort of queries, please mention it in the comment box. I'll be there to reply. Thank you so much.